اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. شعبہ نہیں انل منکر بھٹکل کی جانب سے تنظیم میں فیڈریشن اور اسپورٹس کے ذمہ داران کے ساتھ خصوصی میٹنگ کا انعقاد. کاسرگوڑ بی جے پی کی ہڑتال تشدد میں تبدیل، کئی جگہوں پر پولیس اور بی جے پی کارکنان کے درمیان جھڑپیں. سماجوادی پارٹی صلح کی طرف، صدر کا عہدہ چھوڑ کر ملائم کو راضی کر سکتے ہیں اکھلیش. نوٹ بندی آزاد ہندوستان کی تاریخ میں سیاہ باب، لوگوں کے لیے بھلا پانا ناممکن، مایاوتی کا بیان. سال 2016 میں صہیونی حکومت نے 1600 فلسطینیوں کو بے گھر کیا. میانمار فوج کی نہتے روہنگیا مسلمانوں پر انسانیت سوز مظالم، دل دہلا دینے والی ویڈیو منظر عام پر. دو 2016 کا مسلمان کچھ پایا تو نہیں مگر صرف کھویا ہی کھویا. ناظرین، زندگی کا 1 سال بیت گیا، لگتا ہے ابھی میں نے سال 2015 کی رودات سنائی تھی. اب سنیے سال 2016 کی انکہی رودات. اسی پس منظر میں اس ہفتے دیکھنا نہ بھولیں فکر و خبر کی سیدھی بات میرے ساتھ. ناظرین، اب خبریں تفصیل سے. بھٹکل شہر میں خصوصاً نوجوانوں میں پھیل رہی برائیوں کی روک تھام کے سلسلے میں کل رات شعبہ نہیں انل منکر کے ذمہ داران مجلس اصلاح و تنظیم کے دفتر پہنچے اور شہر کے موجودہ حالات سامنے رکھتے ہوئے نوجوان کی بے رحم روی اور ان میں پھیل رہی نت نئی برائیوں کے پھیلاؤ پر تشویش کا اظہار کیا اور اس کی روک تھام کے لیے آگے بڑھنے پر زور دیا. قاضی خلیفہ جماعت المسلمین بھٹکل مولانا خواجہ معین الدین ندوی نے کہا کہ آج سب سے بڑا مسئلہ برائیوں کی روک تھام کا ہے. ہر شخص اس کی روک تھام کی باتیں کر رہا ہے، لیکن اس میں سے زیادہ پہل ہمیں خود کو کرنا چاہیے اور اپنے گھر والوں پر کڑی نظر رکھتے ہوئے ان میں پھیل رہی برائیوں کے ازالے کی جانب سے توجہ دینی چاہیے. مولانا نے کہا کہ اپنے گھر سے نہی انل منکر کا کام شروع کیا جائے تو معاشرے میں پھیلی برائیوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے. اگر گھر کے افراد برائیوں کی روک تھام کے لیے کوششیں کرتے تو خود بخود ان برائیوں پر کنٹرول حاصل ہو جاتا. محترم جامعہ اسلامیہ بھٹکل مولانا مقبول احمد کوبٹی ندوی نے کہا کہ سب سے بڑا مسئلہ ہمارا آپسی مسئلہ ہے. ایک اسپورٹس سینٹر سے تعلق رکھنے والے نوجوان نے اگر غلطی اور کوئی دوسرا اسپورٹس سینٹر کا ذمہ دار اس پر نکیر کرے تو اپنے اسپورٹس سینٹروں میں حمایت میں ہم کھڑے ہو جاتے ہیں اور نکیر کرنے والے کو آڑے ہاتھوں لیتے ہیں، جبکہ دونوں اسپورٹس سینٹرز کے اراکین اس برائیوں کے خاتمے کی بات کرتے ہیں، لیکن آپسی رنجش کی وجہ سے مجرم جری ہو جاتا ہے اور ہمارے آپس کی رنجشیں مجرم کو مواقع فراہم کرنے کا سبب بنتی ہیں. مولانا عبدالعظیم ندوی نے کہا کہ برائیوں کو روکنے کی ذمہ داری صرف ایک خاص طبقے پر نہیں بلکہ معاشرے کا ہر فرد اس کے لیے ذمہ دار ہے اور ہر ایک کو اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. اس مختصر سے پروگرام میں نہی انل منکر کے سلسلے میں کئی مفید آراء سامنے آئیں اور اس بات کا اظہار کیا کہ ہر اسپورٹس سینٹر کے تحت نہی انل منکر کا شعبہ قائم کرتے ہوئے اپنے محلوں میں پھیل رہی برائیوں کی ازالے کی کوشش کریں. اس موقع پر قاضی جماعت المسلمین بھٹکل محترم مولانا محمد اقبال ملا ندوی، تنظیم کے ذمہ داران کے ساتھ ساتھ فیڈریشن اور ہر اسپورٹس سینٹر کے ذمہ داران بھی موجود تھے. کاسرگوڑ بی جے پی کی جانب سے نکالی گئی ریلی پر پتھراؤ کیے جانے اور اس کے لیڈران کو حراست میں لیے جانے کی مخالفت میں کل کاسرگوڑ میں بی جے پی کی جانب سے منایا جا رہا بند تشدد کی وارداتوں میں تبدیل ہو گیا تھا. کئی علاقوں میں پولیس اور بی جے پی کارکنان کے درمیان جھڑپیں ہوئی اور پولیس نے بھیڑ کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کا استعمال کیا. احتجاجیوں کی جانب سے پولیس اہلکاروں پر پتھراؤ کیے جانے کی خبریں بھی موصول ہوئی. فکر و خبر کو ملی اطلاعات کے مطابق کل بی جے پی کی جانب سے نکالی گئی ریلی میں نامعلوم افراد نے پتھراؤ کیا، جس پر بی جے پی کارکنان آج کاسرگوڑ بند منانے کا اعلان کیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے کارکنان سڑکوں پر اتر آئے اور نعرے بازی کرنے لگے. جب معاملہ بہت آگے بڑھا تو پولیس نے مداخلت کرتے ہوئے احتجاجیوں کو روکنے کی کوشش کی، جس پر بی جے پی کارکنان طیش میں آ گئے اور تشدد پر اتر آئے. انہوں نے کئی گاڑیوں کو نقصان پہنچایا اور موجودہ حکومت سی پی آئی ایم کی جانب سے چلائے جا رہے کوآپریٹو بینک پر پتھراؤ بھی کیا. پولیس نے پہلے حالات قابو میں کرنے کی کوشش کی، لیکن جب احتجاجی تشدد پر اتر آئے تو پولیس نے لاٹھی چارج کیا اور آنسو گیس کا استعمال کیا.
इस बंद की वजह से सड़कों पर आमदोरफ्त ना के बराबर थी और सरकारी और निजी बस सर्विस पर भी असर पड़ा। तमाम कारोबारी इदारे और दुकानें बंद रहीं और अक्सर तालीमी इदारों ने छुट्टी का ऐलान किया था। ज़राए से मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक बेंगलुरु से आ रही सवारियों को बीजेपी कारकुनान ने ज़बरदस्ती रोका। बेंगलुरु जा रहे एक उमर रसीदा को भी रोककर बीजेपी कारकुनान ने बड़ा परेशान किया। जब इलाज के लिए जाने की बात कही तो उन्हें छोड़ दिया गया। सुबह बजरिया ट्रेन कासरगोड पहुंचने वाली मुसाफिरों को बस सर्विस मुअत्तल रहने की वजह से बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लखनऊ इलेक्शन कमीशन में अपना मौक़िफ़ रखने के बाद एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव लखनऊ लौट आए हैं। इस दरमियान खबरें आना शुरू हो गई हैं कि मुलायम और अखिलेश के दरमियान सुलह हो सकती है। इन्हीं खबरों के दरमियान मंगल को सीएम अखिलेश यादव मुलायम सिंह के मिलने उनकी रिहाइशगाह पहुंचे। समाजवादी पार्टी के मुस्तकबिल को लेकर मुलाकात काफ़ी अहम मानी जा रही थी। इधर शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि मुझे मुलाकात के बारे में पता नहीं, अगर नेताजी बुलाते हैं तो ज़रूर जाएंगे। शिवपाल का बयान आने के बाद कुछ देर बाद ही खुद शिवपाल अपने बेटे आदित्य के साथ मुलायम की रिहाइशगाह पर पहुँच गए। ज़राए के मुताबिक अभी भी मुलायम और अखिलेश में सुलह की गुंजाइश बनी हुई है। टिकटों की तकसीम के हक से लेकर तंजीम में तब्दील और कुछ अहम लोगों की पार्टी से रुखसती के हुकूक मिलने पर अखिलेश अपने वालिद मुलायम के सामने सरेंडर कर सकते हैं। यह भी बहस है कि बाप बेटे इस पर मुत्तफिक हैं कि अखिलेश यादव एसपी का सदर ओहदा छोड़ देंगे। ज़राए के मुताबिक अखिलेश की एक शर्त यह भी है कि शिवपाल यादव को कौमी सियासत में भेज दिया जाए, क्योंकि रियासत में रहकर दोनों साथ काम नहीं कर सकते। गौरतलब है कि अखिलेश अमर सिंह के साथ ही शिवपाल के ऊपर भी पार्टी के खिलाफ साजिश करने का इल्ज़ाम अवामी तौर पर लगा चुके हैं। वहीं मंगल को अखिलेश खेमे की तरफ से प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने इलेक्शन कमीशन में दावा पेश कर दिया है। उनका कहना है कि साइकिल चुनाव निशान उनका है और पार्टी पर भी उन्हीं का हक है। नई दिल्ली बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज एक बार फिर नोटबंदी को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। मायावती ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मैं ये दुआ करती हूँ कि नया साल 2016 की तरह मुल्क के अवाम के लिए नोटबंदी जैसी मुसीबत न लाए। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत मुतवस्सित तबका, ईमानदार लोगों, किसान और गरीबों के लिए लानत साबित हो रही है। बीएसपी की सरबराह ने कहा कि मोदी हुकूमत ने मुल्क में कालाधन और बदअनवानी पर लगाम लगाने के नाम पर अपने इलेक्शन की वादा खिलाफी से तवज्जो हटाने के लिए नोटबंदी का फैसला लिया। इससे मुल्क भर के 90% लोगों ने परेशानी झेली है। इसे आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख में ऐसा सियाबाब के तौर पर रिकॉर्ड किया जाएगा जिसे लोगों के लिए भुला पाना नामुमकिन है। फिलिस्तीन गासिब इसराइली हुकूमत जहां एक तरफ मकबूजा फ़िलिस्तीनी इलाकों में बैनुल-अक़वामी बरादरी की शदीद मुखालिफत के बावजूद गैर कानूनी यहूदी बस्तियों की धड़ाधड़ तामीर जारी रखे हुए है, तो दूसरी जानिब फ़िलिस्तीनी शहरियों के मकानात मिस्मार करने की जालिमाना मुहिम भी ज़ोरों पर है। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से जारी करदा एक रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले साल यानी 2016 ईस्वी में काबिज़ सहियूनी फोर्सेस ने मकबूजा गरबी उर्दून और मशरक़ी बैतुल मक़दिस में फ़िलिस्तीनी शहरियों के 1079 मकानात मुनहदिम किए, जिसके नतीजे में 1600 फ़िलिस्तीनी छत से महरूम हुए हैं। अल अरबिया के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए इंसानी हुकूक़ ओचा की तरफ से जारी करदा एक रिपोर्ट में बताया गया है कि सहियूनी रियासत फ़िलिस्तीनी शहरियों के मकानात मिस्मारी की इंतकामी पॉलिसी न सिर्फ जारी रखे हुए है, बल्कि हालिया बरसों के दौरान उसमें गैर मामूली तेज़ी आई है। साल 2016 के दौरान 1100 के करीब मकानात मिस्मार किए गए, जिसके नतीजे में 1600 फ़िलिस्तीनी बेघर हुए। बेघर होने वालों में बेशतर बच्चे और औरतें शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ने बेघर किए गए फ़िलिस्तीनियों की बहाली के लिए आलमी बरादरी से $547 मिलियन की मदद तलब की है और कहा है कि इस रकम का 70% गज़ा की पट्टी में जंग से मुतासरा शहरियों की बहाली पर सर्व किया जाएगा, जबकि बकिया रकम में से 52% अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ फंड वर्क्स एजेंसी ओनरवा को दी जाएगी। रियाद बर्मा में बसने वाले मुसलमानों पर वहाँ की जालिम हुकूमत और फ़ौज के वहशियाना मजालिम की खबरें आए रोज़ ज़राए अबलाग की जीनत बन रही है। ऐसी रोंगटे खड़े करने वाले मजालिम को मुतरशह करती हुई एक फुटेज हाल ही में सोशल मीडिया की तवस्सुत से सामने आई है, जिसमें म्यांमार की फ़ौज निहत्ते रोहिंग्या मुसलमानों पर होलनाक तशद्दुद करते देखी जा सकती है। अल अरबिया को मौसूल होने वाली ये वीडियो अराकान के खबर रसां इदारे ने नशर की है। ये फुटेज किसी फौजी एहलकार ने अपने मोबाइल कैमरे के जरिए बनाई है, जिसमें पकड़े गए रोहिंग्या मुसलमान पर फौजियों को इंसानियत सुस्त तशद्दुद और अजियतें देते हुए दिखाया गया है। फुटेज में म्यांमार के फौजी एहलकार मासूम मुसलमानों पर वहशियाना तशद्दुद कर रहे हैं। उन्हें इंतहाई शर्मनाक तरीके से डंडों और लातों से मारा पीटा जा रहा है, बल्कि उन्हें नंगी गालियाँ भी दी जा रही हैं।
अराकान न्यूज़ एजेंसी, जिसका सदर दफ्तर मक्का मुकर्रमा में है, ने फुटेज की तस्दीक की है और बताया कि रोहिंग्या की फ़ौज निहत्ते मुसलमान शहरियों पर ताकत का वहशियाना इस्तेमाल कर रही है। अगरचे अराकान सूबे की हुकूमत फ़ौज और पुलिस के हाथों मुसलमानों पर वहशियाना तशद्दुद के मज़ाहिर की तरदीद करती है, मगर इंसानी हुकूक़ की आलमी तंजीमें बार बार म्यांमार की फ़ौज पर मुसलमानों पर बदतरीन मजालिम, उनकी इज्तिमाई कत्लेआम, पकड़ धकड़ और तशद्दुद का इल्ज़ाम आयद करती चली आ रही है। म्यांमार, जिसका पुराना नाम बर्मा है, कि मगरबी सूबे रोहिंग्या में मुसलमान अक़लियत आबाद हैं। मुसलमान बाशिंदों की आबादी 10 लाख से ज़्यादा है। अक़वाम मुत्तहिदा ये तस्लीम कर चुका है कि मुनज़्ज़म रियासत दहशतगर्दी का सामना करने में रोहिंग्या के मुसलमान पहले नंबर पर हैं। वहाँ की हुकूमत ने सन 1982 ईस्वी में सूबे की मुसलमान आबादी को अपना शहरी तस्लीम करने से इनकार करके उन्हें मुल्क बदर करने की मज़मूम साजिश तैयार की थी। इंसानी हुकूक़ आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक म्यांमार की हुकूमत के दावों के अलरग़म रोहिंग्या में मुसलमानों पर रियासती जबर व तशद्दुद का सिलसिला बदस्तूर जारी है और म्यांमार की फ़ौज इंसानी हुकूक़ की संगीन पामालियों की मुर्तकिब होती जा रही है। नाज़रीन, ये थी फ़िक्र ख़बर वीडियो न्यूज़ की अहम तरीन ख़बरें। मज़ीद आलमी, खलीजी, मुल्की और मकामी ख़बरों के लिए स्क्रीन पर दिए जा रहे हमारे वेबसाइट्स तक आने की ज़हमत फरमाएँ। फिर मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़िक्र ख़बर वीडियो न्यूज़ की नशर व इशाअत में इदारे का ताउन करने वाले अहम तिजारती इदारे अली एजुकेशनल बुक हाउस भटकल, भटकल ट्रैवल हाउस भटकल, रिपको भटकल, अफ्रीका सुपर वालियो दुबई, स्टारवे ट्रेडिंग दुबई, खालिद कमीस अब्दुल्ला ट्रेडिंग दुबई।